सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. It means may everyone be happy, may everyone be free from all diseases, may everyone see goodness and auspicious in everything. May none be unhappy and distressed. Very good morning and warm welcome all my dear students, parents and teachers on this 7th International Yoga Day. Yoga. Yoga is the journey of the self, through the self, to the self. Yoga is a Hindu spiritual ascetic discipline. The word yoga derived from the Sanskrit word yuj, which means to join or to unite. It is the union of Atma and Paramatma, which indicates perfect harmony between the mind, body, nature, and universe. International Yoga Day is celebrated every year on 21st of June. This custom began in 2015. I am so happy to say that this internationally celebrated day was initiated by our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Ji Modi. Today, we are celebrating 7th International Yoga Day. The theme of International Yoga Day 2021 is Yoga for Well-being. Due to the COVID-19 pandemic across the world, it has become impossible for people to gather and celebrate the day together. But I am very happy to tell you all that RNLS already took an initiative to arrange special yoga classes under the guidance of our trained yoga exponents, Mr. and Mrs. Daima. Our school set live yoga classes on Microsoft Teams, not only for the students but also for the parents and the teachers. Our students and parents are taking benefit of this yoga. Here, I would like to call our student Samruddhi Phir from class 7 for her short speech. Good morning everyone, myself Samruddhi Arvind Phir. Today I give you some information about International Yoga Day. The International Day of Yoga is annually celebrated on 21 June. The General Assembly in 2014. Yoga is a physical, mental and spiritual practice which was originated in our India. The Indian Prime Minister Narendra Modi ji suggested the date of 21 June as that is the longest day in Northern Hemisphere and shares a special significance in many parts of the world. Today, people around us are all set to take out their yoga mats and do yoga. But do you know why June 21 is chosen to be International Yoga Day? Yoga is an ancient practice which was originated in our country. The practice is to be 5,000 years old. The development of yoga is important for achieve harmony and state balance between heart and soul and to enlightenment. Not only this, we are taking time pass that also seen that with time pass yoga had still medical benefits. It helps us to cure many diseases like diabetes, high blood pressure, physical injuries, also chronic pain. On the first yoga day, that is 21st June 2015, around 35,985 people
including Prime Minister himself, gathered on Rajpath, New Delhi, and from 190 nations performed. Australia, Argentina, Bangladesh, Myanmar, Russia, Russia, Denmark, India, Zimbabwe, Belgium. Not only this, we have other countries to participate here. Yoga for Peace, which is important and organized by the Permanent Mission of Indian United Nations. In 1893, Swami Vivekananda addressed the World Parliament of Religions in Chicago, America, where he introduced the yoga. After that, many Eastern gurus and yogis started spreading the yoga, and on a large scale, people started accepting the yoga. Yoga is an important thing in our Indian culture and civilization. There are both properties of physical elements, of humanity and spiritual uplift. This is ideal combination of knowledge, karma and devotion. Maharishi Patanjali's contribution is important because he qualified and organized yoga postures in Yoga Sutras. It overall makes us more positive, affective, happy, more energetic and increases self-control. At last, I would like to say that my life is my yoga. Thanks for patience hearing. Thank you all. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। Yes, very true. Here, I would like to say, yoga is a light. Yoga is a light which one's lit will never dim. The better your practice, the brighter your flame. Here, I would like to hand over this mic to our yoga exponent, Mr. Daima sir, for his precious words. योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्ररङ्मुनिना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सभी को प्रणाम। आज यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के अवसर पर राजा नारायणलाल लाहौटी इंग्लिश स्कूल की 7वीं कक्षा में पढ़ती हुई बच्ची समृद्धि फड़, इसने बहुत ही बढ़िया तरीके से योग दिन की आवश्यकता, उसका इतिहास, उसकी पार्श्वभूमि बहुत ही अच्छी तरीके से कथन की है। जैसा कि हम सभी को पता है, 2014 में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिन का प्रस्ताव पारित किया था और 2015 में 21 जून को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाया गया। आज हम 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मना रहे हैं। विश्व के 250 से भी अधिक देशों में आज यह योग दिन मनाया जा रहा है। समृद्धि ने महर्षि पतंजलि का भी उल्लेख किया। भारतीय योग शास्त्र के प्रणेता के रूप में हम महर्षि पतंजलि को जानते हैं। योग दर्शन के द्वारा उन्होंने हमें अष्टांग योग समझाया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि, यह 8 अंग अष्टांग योग में निहित है। जैसा कि हम देख रहे हैं, हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिन की एक थीम होती है। पिछले साल कोविड पैंडेमिक के चलते योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली, अर्थात घर पर योग
एवं परिवार के साथ योग, यह थीम थी। और इस साल योगा फॉर वेलबीइंग, हम सभी के सेहत के लिए योग, इसी थीम को मद्देनजर रखते हुए राजा नारायण लाल लाहौटी इंग्लिश स्कूल ने पिछले 10 दिनों से यहाँ पर इस योग महायज्ञ का आयोजन किया है। आज इस यज्ञ का, इस शिविर का 10वां दिन है। प्रथमतः आज इस योग शिविर का समारोह करना निश्चित हुआ था, मगर स्कूल के आदरणीय प्रिंसिपल कर्नल वर्धन सर जी एवं स्कूल के रजिस्ट्रार प्रवीण जी शिवंगीकर सर, इन दोनों ने इस शिविर को अगले 10 दिनों के लिए एक्सटेंड करने का निर्णय लिया है। मैं उनके निर्णय का समर्थन करता हूँ। जैसा कि हमने देखा, अभी अभी समृद्धि ने यहाँ पर योग दिन पर बहुत ही अच्छी तरीके से अपने विचार प्रकट किए हैं, हाथ में कोई भी कागज न लेते हुए, जिससे हमको यह देखने को मिलता है कि अगर हम बच्चों में योग को पनपने का मौका अगर मिले तो उनके फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल, ऑल टाइप्स ऑफ डायमेंशन ऑटोमेटिकली डेवलप होते हैं। जैसा कि कहा गया है, हमारे धर्म में 4 प्रकार के आश्रम कहे गए हैं, जिसमें विद्यार्थियों के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थी के लिए गृहस्थ आश्रम, बाद में रिटायरमेंट लाइफ के लिए वानप्रस्थाश्रम और बाद में संन्यास आश्रम बताया गया है। पहले आश्रम में संस्कृत श्लोक में एक बताया गया है कि पहले आश्रम में आपको विद्या कमाना है, दूसरे आश्रम में आपको सांसारिक कर्तव्य के लिए धन कमाना है और तीसरे आश्रम में आपको सामाजिक कर्तव्य के लिए पुण्य कमाना है। अगर आप इन तीनों स्टेजेस में वेल परफॉर्म नहीं करते हैं तो चौथी स्टेज में आपको कुछ काम ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैं इस स्कूल का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि इस स्कूल ने हम दोनों को यहाँ पर योगासन संबंधित सैद्धांतिक एवं प्रात्यक्षिक विचार रखने की संधि दी है। अधिक समय न लेते हुए मैं स्कूल के सभी अभिभावकों, सहपाठियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि 10 दिन से वो हमारे साथ योगा के लिए जुड़े हैं और अगले 10 दिन भी जुड़े रहेंगे। आज के इस पवित्र शुभ अवसर पर आपको एक दिव्य संकल्प लेना है कि मैं प्रतिदिन निश्चित समय पर निश्चित अवधि के लिए योगाभ्यास करूंगा और मैंने जो 10 या 20 दिन में जो योग सीखा है वह योग कम से कम एक व्यक्ति को मैं ट्रांसफर करूंगा, क्योंकि जब कोई भी ज्ञान आप दूसरे को देते हैं तो आपके खुद के ज्ञान का तो दृढ़ीकरण होता ही है, समाज के एक व्यक्ति के रूप में भी आपका योगदान महत्वपूर्ण होता है। इसी संकल्प के साथ आज हम योगाभ्यास की शुरुआत कर रहे हैं। थोड़ा सा रेगुलर शेड्यूल में हमने चेंज यहाँ पर किया है। यहाँ पर पहले हम सूक्ष्म अभ्यास करेंगे और 15 मिनट के लिए, सूक्ष्म अभ्यास के पश्चात 30 मिनट हम कठिन आसनों के प्रात्यक्षिक यहाँ पर देखेंगे, जिसमें गोरज दायमा जो हरिद्वार से आदरणीय स्वामी रामदेव जी द्वारा प्रशिक्षित है और वहाँ पे 2019 में अगस्त में 5 दिवसीय शिविर किया था। वहाँ पे करीबन 3000 साधक उपस्थित थे और 3000 साधकों में सबसे कम उम्र के साधक गोरज दायमा थे। तो पिछले 2 साल से वह योगाभ्यास नियमित रूप से कर रहे हैं। उनके साथ ओजस दायमा और हार्दिक व्यास, यह तीनों आज कठिन आसनों के प्रात्यक्षिक यहाँ पे दिखाएंगे। पहले 15 मिनट में जो सूक्ष्म व्यायाम होंगे वह सभी को आपको हमारे साथ करने हैं और बाद में 30 मिनट के प्रात्यक्षिक आपको करना बंधनकारक नहीं है। आप पहले उसको देखेंगे और अगर आपको करने की इच्छा हो तो सावधानी के साथ सूचनाओं का पालन करते हुए आप थोड़ा थोड़ा
सावधानी के साथ करने की कोशिश कर सकते हैं। बट प्योरली these 30 minutes practicals are for demonstration purposes। तो आइए हम त्रिवार ओंकार के साथ आज के योगाभ्यास की शुरुआत करते हैं। हम सब मिलकर प्रेम से बोले, ज्ञानी बने और अपने पूर्वजों के भांति अपने कर्तव्य का पालन करें। तो हम लोग अब शुरू करेंगे अपने नित्य अभ्यास क्रम को सूक्ष्म व्यायाम से। तो हम लोग आज बैठकर ही सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। तो अपनी अपनी जगह पर हम लोग बैठे हैं, पाँव को थोड़ा लंबा कर लेते हैं, थोड़ा सा बीच में दंडासन की स्थिति में हम लोग बैठ जाते हैं आराम से। अब जब हमें बैठना है तो अब पहले पैर की उंगलियों से हम लोग अपने शीश तक यानी गर्दन तक हम लोग धीरे धीरे अपने एक एक अंग को शिथिल करेंगे। सबसे पहले हम लोग करते हैं पैर के उंगलियों की एक्सरसाइज। तो दंडासन की स्थिति, अब हम लोग पैर की उंगलियां से आगे पीछे 4 से 5 बार आगे पीछे करेंगे। अब पैर की पंजे के साथ आपको उंगलियों को थोड़ा आगे पीछे कर लेना है। हर सूक्ष्म व्यायाम हम नित्य क्रम से 10 दिनों से करते आ रहे हैं, तो 5 से 6 बार आप आराम से हर सूक्ष्म व्यायाम को कर सकते हैं। अब एड़ी के साथ अपने पंजे को आगे पीछे में स्ट्रेच करना है। पैर की उंगलियां आगे की ओर स्ट्रेच करनी है, फिर पीछे की ओर पंजा। एड़ियों के साथ हम मूवमेंट करते हैं, इसमें हमारी एड़ियां रिलैक्स होती है। हम हर एक अंग को शिथिल कर कर फिर कठिन आसनों के पास जाते हैं। इसलिए हर सूक्ष्म व्यायाम धीरे धीरे आपको पहले शुरुआत में कर लेना है। अब हम लोग करेंगे घुटनों को थोड़ा शिथिल। तो घुटनों को ऊपर नीचे इस तरह से आपको धीरे धीरे मूवमेंट्स लेनी है। बहुत जोर से इसे नीचे पीटना नहीं है, लगाना नहीं है, हल्के हल्के से आपको अपने पैरों को घुटनों को हिलाना है, घुटनों को ऊपर नीचे कर देना है। घुटनों को अब दूसरा स्ट्रेचिंग करेंगे। जो घुटने की बीच की कटोरी है यानी जो पार्ट हमारा खड़ा है, उस पार्ट को अंदर आपको सिकुड़ना है और खोलना है, जिससे उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो अच्छे से डेवलप होते हैं। हमारे घुटनों की जो पेन है वो कम होती है, घुटनों की मांसपेशियां मजबूत होती है, हड्डी मजबूत होती है। अब जब आप ये मूवमेंट्स करते हो तो आपको महसूस होता है कि आपकी पिंडलियों में भी स्ट्रेचिंग होता है, जंघाओं में भी स्ट्रेचिंग होता है। तो वो आपके पूरे पाँव को मजबूत करने के लिए लाभदायी ये स्ट्रेचिंग होती है। अब घुटने का दूसरा एक्सरसाइज कर लेते हैं। लेफ्ट पाँव को हाथ में पकड़ लेते हैं और पंजे को अपने राइट पाँव की जंघा के ऊपर मूलाधार क्षेत्र के पास रख लेते हैं।
अब धीरे धीरे अपने हाथ का सहारा लेकर घुटने को थोड़ा ऊपर उठाते हैं और घुटना जमीन पर टिकाने की कोशिश करती है। ये घुटनों के लिए बहुत ही लाभदायी एक्सरसाइज है। धीरे धीरे आपको हर एक्सरसाइज धीमे धीमे करनी है, तीव्र गति से नहीं करनी है। अब अपने हाथ से पंजे को गोद में उठा लीजिए। जैसे माँ अपने बच्चे को झूला झुलाती है गोद में, वैसे अपने पाँव का थोड़ा सा झूला उसे झुला लीजिए, जिससे आपकी जॉइंट्स जो है उसमें आपको आराम से राहत मिलेगी। और यहाँ जो हमारे मूलाधार क्षेत्र में घुटने में जो जॉइंट होते हैं, यहाँ जो जॉइंट होते हैं, वो जॉइंट पेन कम करने के लिए हम लोग ये एक्सरसाइज करते हैं। अब ये पाँव सीधा कर लेते हैं और दूसरे पाँव से कर लेते हैं। राइट पाँव को उठाया, पहले जंघा के ऊपर रख दिया, धीरे धीरे 4 से 5 बार हाथों की हथेलियों का सहारा लेते हुए घुटने को जमीन पर टिकाने की कोशिश करेंगे। अब इसे गोद में उठा लेते हैं और झूला झुला लेते हैं। आइए अपने पाँव को सीधा कर लेते हैं थोड़ा। अब हम लोग अपने कमर की एक्सरसाइज करेंगे। तो कमर की एक्सरसाइज हम लोग कैसे करेंगे? अब हम लोग चक्की चला लेते हैं, तो जिसमें हमारी पूरी कमर गोल मड़ोल घूमेगी। तो आइए लेफ्ट से राइट की ओर। ओके, 4 बार सामने से इस तरह से आइए, फिर अपोजिट साइड से लीजिए। आपसे जितना बन पाए उतना पीछे जाने की कोशिश आपको करनी है। इससे आपकी पूरी कमर की एक्सरसाइज होती है। पार्श्व भाग में जो एक्स्ट्रा चर्बी बनती है वो बंद हो जाती है। अपोजिट साइड से करते हैं। पार्श्व भाग की चर्बी, मोटापा, बढ़ी हुई बढ़ा हुआ पेट, एक्स्ट्रा चर्बी बर्न करने के लिए और हमारे शरीर की हर एक मांसपेशी में खिंचाव इससे होता है और मांसपेशियां मजबूत होती है। अब हम लोग करते हैं ग्रीवा चालन। तो आइए पहले अपने पैरों को मोड़ लेते हैं सुखासन की स्थिति में। अब हम लोग अपनी ग्रीवा का संचालन करेंगे। तो पहले आगे और पीछे की ओर हम 2-2 बार गर्दन को झुकाएंगे। जब आप गर्दन सामने लेते हो तो सांस को छोड़ा जाता है, और गर्दन जब पीछे लेते हो तो सांस को भरकर आपको पीठ फिर जितना आपको टिकाते आए उतना टिकाकर थोड़ा होल्ड करना है हर स्थिति में। सामने आने के बाद भी होल्ड करो, पीछे जाने के बाद भी आपको होल्ड करना है। तो आइए शुरू करते हैं ग्रीवा को आगे पीछे लेना। तो सांस छोड़ते हुए ग्रीवा को आगे की ओर झुकाएंगे। आपकी ठोड़ी आपके कंठकूप को स्पर्श करने की कोशिश कीजिए। इसमें होल्ड किया, फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर गर्दन को लेके जाएंगे। पीछे आपकी गर्दन को पीठ को टिकाने की कोशिश करना है, जितना बन पाए उतना होल्ड कीजिए। अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से होल्डिंग करना है, फिर वापस सांस छोड़ते हुए सामने आना है। धीरे धीरे आपको ये मूवमेंट्स करनी है। तीव्र गति से करते हो तो बहुत से लोगों को चक्कर आता है, इसलिए ग्रीवा का संचालन हम लोग धीरे धीरे करते हैं। सांस भरते हुए गर्दन को पीछे लेंगे, होल्ड किया, फिर धीरे धीरे वापस सामान्य स्थिति में गर्दन को सीधा कर लेते हैं। अब हम लोग अपनी गर्दन को लेफ्ट एंड राइट टर्न करने वाले हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कंधे उठाना नहीं है और सिर्फ आपको गर्दन को टर्न करना है, गर्दन को झुकाना नहीं है। तो हम लोग सिर्फ लेफ्ट में पहले टर्न लेते हैं, धीरे धीरे गर्दन को लेफ्ट में मोड़ते हैं, होल्ड करना है यहाँ जाकर, फिर धीरे धीरे वापस सामान्य रूप से आना है। जब जब आपका शरीर का कोई भी अंग आप पीछे की ओर लेकर जाते हो तो सांस भरते हैं और आगे की ओर आते समय आपको सांस छोड़ना है। राइट साइड में टर्न करेंगे, धीरे धीरे होल्ड करते हैं, फिर वापस धीरे धीरे सामने आते हैं। और एक बार यही चक्र धीरे से दोहराएंगे। धीरे धीरे लेफ्ट की ओर गर्दन को टर्न करते हैं, सामने आएंगे धीरे धीरे,
राइट की ओर गर्दन को धीरे धीरे टर्न करते हैं, वापस धीरे धीरे। अब गर्दन का तीसरा एक्सरसाइज, आपको कान को कंधों की ओर झुकाना है, मतलब गर्दन को झुकाना है इस तरह से, ठीक है। तो हम लोग लेफ्ट में और राइट में इसे दो बार करेंगे। धीरे धीरे आपके कान को कंधों की ओर झुकाना है। अब इसे ज़्यादा देर होल्ड नहीं करते, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग होना अच्छा नहीं है। धीरे धीरे वापस पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। अब अपोजिट साइड में कर लेते हैं, फिर वापस धीरे धीरे सामने आ गए और एक बार यही जाके दोहराते हैं। अपोजिट साइड से अब हमें ग्रीवा का सर्कल बनाना है। धीरे धीरे दो बार वो हम करेंगे, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो जब आप पीछे की ओर गर्दन को लेके जाते हो तो सांस को भरिए, और यहाँ पर आने के पश्चात जब आप वापस सामने आते हो तो सांस को छोड़ना है, ठीक है। तो आइए क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। पहले क्लॉकवाइज कर लेते हैं। सांस भरते हुए गर्दन को पीछे लेना है, बीच में आने के पश्चात सांस छोड़ते हुए वापस नीचे आना है। दूसरा राउंड लगाएंगे। हर ग्रीवा का संचालन आपको धीमे धीमे करना है। अब अपोजिट साइड से एंटी क्लॉकवाइज, सांस भरते हुए गर्दन पीछे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को आगे लिया। फिर एक राउंड लगाएंगे। सांस भरते हुए गर्दन पीछे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को आगे करते हैं। अब गर्दन को सामान्य स्थिति में सीधा कर देते हैं। अगर आप इसे तीव्र गति से करते हो तो चक्कर सा आता है, इसलिए धीमे धीमे करना है। फिर से एक बार दोहराती हूँ। अब हम लोग करेंगे कंधे का संचलन, यानी कोहनी कंधा में सबको हिलाना है, हाथों को रिलैक्स करना है। तो सबसे पहले हाथों को सामने करके उंगलियों की एक्सरसाइज करेंगे। हाथों को सीधा कर लिया, उंगलियां फैला दी, मुट्ठी को बंद कीजिए और खोलिए। मुट्ठी बंद करना है, खोलना है। ऐसे आप 3 से 4 बार आराम से कीजिए। अब हमें कोहनी की एक्सरसाइज करनी है, तो हाथों की हथेलियों को आकाश की दिशा में कर लेते हैं। कोहनियां मोड़कर हथेली को कंधे पर रखेंगे। 4 से 5 बार आराम से इसे कर लीजिए। अब हमें करना है, कंधे को घुमाना है। हाथ को नीचे कर लेते हैं, हाथ को उठा लिया। अब हमें क्या करना है, कंधे को घुमाना है। हम आगे इनको क्यों किए, क्योंकि हमारे हाथ एक दूसरे को टच ना करें, तो ठीक है। तो अब हम लोग कंधे के ऊपर अपने शोल्डर पे हाथ रख लेते हैं। सामने की ओर कोहनी जब आती है तो एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश करनी है, और पीछे की ओर आपको वापस ये सर्कल बनाना है, गोल, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 4 से 5 बार कंधे को आराम से ऐसे घुमा लीजिए। अब अपोजिट साइड से करते हैं। पीछे से आगे की ओर भी आते समय आपकी कोहनियां एक दूसरे को सामने टच करेंगी। हाथों को नीचे ले लीजिए। अब हम लोग करेंगे आंखों वाला एक्सरसाइज। आंखों की एक्सरसाइज में आपको धीमे धीमे करना है। पहले क्लॉकवाइज करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो चारों दिशाओं में हमें अपने आंख के रेटिना को सिर्फ घुमाना है। उसमें चेहरा आपका सामने सीधा रहेगा, सिर्फ आंखों से आपको नजर को घुमाना है, ठीक है। तो 2 बार क्लॉकवाइज और 2 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर की ओर देखेंगे, फिर राइट साइड में देखेंगे, भूमि की ओर, लेफ्ट साइड में, फिर आकाश की ओर, राइट साइड में, भूमि की ओर, लेफ्ट साइड में, और अब सीधा देखते हैं। अब इसे अपोजिट साइड से करना है। तो आइए आकाश की ओर देखते हैं, फिर लेफ्ट साइड में देखते हैं,
भूमि की ओर, राइट साइड में, फिर आकाश की ओर, लेफ्ट साइड में, भूमि की ओर, राइट साइड में, और सामान्य स्थिति में नजर को सामने कर लेते हैं। तो ये है आपके आंखों की एक्सरसाइज। अभी हम लोग ऑनलाइन जब लेक्चर्स करते हैं तो उसमें हमारी आंखों में ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो आपकी आंखों की एक्सरसाइज हर 1-2 घंटे बाद आप धीरे धीरे आंखों को घुमा लीजिए। इसमें और एक होता है पामिंग, जिसमें आपको हाथ की हथेलियाँ अपने आंखों के ऊपर इस तरह से रख लेनी, आंखें बंद करके धीरे से 1 से 2 मिनट के लिए आपको आंखों पर इस तरह से रख लेना है और फिर धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे कर आंखें खोलनी है धीरे धीरे। तो जब हम ऑनलाइन क्लास करते हैं तो रेटिना का कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो सिकुड़ता है, और जब हम पामिंग करते हैं तो उसमें फिर से विस्तार उसका होता है, एक्सपेंशन होता है। तो ये आंखों के लिए अच्छी एक्सरसाइज है। अब कर लेते हैं बटरफ्लाई। तो आइए भद्रासन की स्थिति में, कल हमने आपको भद्रासन दिखाया था। भद्रासन में आपको दोनों पाँव मोड़ के पाँव जोड़ लेने हैं। जितना आपके समीप आप पाँव को लेके जा सकते हो मूलाधार क्षेत्र के, उतना समीप लेकर जाएंगे और पैर के घुटनों से तितली की तरह अपने पैरों को हिलाना है। इसे कहा जाता है बटरफ्लाई या तितली आसन। ये आपके जंघाओं के जोड़ों को मजबूत करता है। बीस 25 बार आराम से आप ऐसे जंघाओं का एक्सरसाइज कर सकते हैं। आइए पाँव को सीधा कर लेते हैं। अब हम लोग कठिन आसनों के दौर में जाने वाले हैं, जो प्रात्यक्षिक के लिए है। पुनः एक बार आपको याद दिला दूं, जिसे संभव है वो करे तो सावधानी से करना, क्योंकि ये आसन आज तक आपको नहीं दिखाए हैं कभी, उसका प्रात्यक्षिक हमने नहीं लिया था। तो आज आप डेमोन्स्ट्रेशन देख लीजिए, फिर हमारे अगले 10 दिनों में कभी आपको ये आसन भी सिखा देंगे धीरे धीरे। लेकिन अकेले करते समय सावधानी से आप लोग ये आसन करेंगे। अब कठिन आसन आपको दिखाएंगे ये तीनों, और हम लोग होंगे आपके साथ नीचे। तो अब हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले कुछ आसन। तो सबसे पहले माइक मेरे पास फिर चलेगा, आवाज जाता है ना। तो हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले शीर्षासन। शीर्षासन ये एक आसनों का राजा है, जिसे आसन का राजा कहा जाता है। और शीर्षासन के लाभ आपको जो होने वाले हैं वो, पहले आप स्थिति आराम से देखिए। पहले अकेले बिना बेस के मत कीजिए, फिर से एक बार दोहरा रही हूँ, क्योंकि ये आसन आपके लिए कुछ नए हैं। शीर्ष पर आपको अपना बैलेंस बनाना होता है। ये आसनों का राजा है। रक्त को शुद्ध कर अपने मस्तिष्क में इसका संचार करता है, जिससे आँख, कान, नाक के जो विकार है उसका आरोग्य जो है वो सुधरता है। आपकी स्मृति में, मेधा में वृद्धि होती है। धारण शक्ति का विकास इससे होता है। और बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा आसन माना जाता है। बालों के लिए ये अच्छा आसन है। पर ध्यान रखें कि सावधानी पूर्वक इसे करना है। हाई बीपी और लो बीपी वाले लोग इसे ना करें। जिससे हार्ट की प्रॉब्लम है वो ये शीर्ष पर लटकने वाला आसन ना करे। बच्चे आराम से कर सकते हैं। बच्चों के लिए हमारा सेशन था, तो मैंने इसलिए आपको ये डेमोन्स्ट्रेट किया है। पर बड़े लोग करते समय थोड़ी सी सावधानी लें। पहले दीवार के बेस पे थोड़ा सा सराव करें, प्रैक्टिस करें, और उसके पश्चात बिना बेस के आप कीजिए। इसके लिए पहले आपको प्रैक्टिस धीरे धीरे किसी के सानिध्य में करनी आवश्यक होती है। और ये ध्यान रखना कि जल्दबाजी में कोई भी आसन आपको नहीं करना है, जिससे आपके कहीं चोट लगने का डर होता है। अब दूसरा आसन हम लोग देखते हैं। ये क्रिया है, नौली क्रिया इसे कहा जाता है। नौली में पाचन तंत्र को
शुद्ध किया जाता है। ग्राइंडर की तरह ये अपने पेट को बाहर निकाल कर सिकुड़ कर फिर इसे घुमा रहे हैं। ये क्रिया करने के लिए आपको पहले अग्निसार, बाह्य प्राणायाम और पेट का हल्का होना सबसे बहुत जरूरी है। अगर आपका पेट भारी है तो आपसे ये बन पाएगा या नहीं हम नहीं बता सकते, लेकिन अगर आपका पेट हल्का है और भूखे पेट ये आसन करना अच्छा होता है। कुछ खाने के पश्चात करते हो तो पेट दर्द हो जाता है, तो कोई भी आसन हम लोग जब करते हैं तो आप लोग उसे ध्यान रखिए कि भूखे पेट करेंगे। अब हमें जो तीसरा आसन देखना है उसमें ये दोनों आराम से बैठ जाएंगे। मैं नौली का आपको पहले बता दूं कि नौली क्या है। नौली आपके पाचन तंत्र को, आमाशय को, यकृत को सक्रिय बनाती है। मोटापा और जो दुर्बलता होती है नौली में वो कम हो जाती है। ये नौली के और शीर्षासन के आपके लिए लाभ थे। अब हम लोग जो देखते हैं, अब देखेंगे हम उत्कट आसन। तो उत्कट आसन में आप पीछे चलेंगे। अब हार्दिक ओजस और गोरज यानी ऋषि आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं उत्कट आसन। उत्कट आसन ये ब्रह्मचर्य के लिए अत्यंत उपयुक्त आसन है। इसमें आपको अपने दोनों पैरों के ऊपर, पैरों के पंजे के ऊपर बैलेंस बनाना होता है और इसका उपयोग आपको बवासीर जो है उसमें ये लाभप्रद आसन कहा जाता है। तो ये हुआ आपका उत्कट आसन। अब इसके पश्चात हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आसन जिसे कहा जाता है तौलासन। तो उसके लिए तौलासन में आपको धीरे धीरे पहले पद्मासन की स्थिति लेनी होती है और अपने हाथों की हथेलियों पर अपने शरीर को उठाना होता है। तो तौलासन में हाथ इन्होंने पद्मासन में पहले पांव ले लिए, हाथ साइड में ले लिए और धीरे धीरे अपना बैलेंस ये बनाने की कोशिश करेंगे अपने हाथों के ऊपर। हाथों के ऊपर पूरा बैलेंस बनाकर ऊपर की ओर शरीर को उठाया जाता है। इससे हाथ और पैर के संपूर्ण स्नायु में बल प्रदान होता है। हाथ की हड्डियां मजबूत होती है। पर प्रत्यक्ष करने से पहले फिर से बता दूं, सावधानी पूर्वक हर आसन करना है। अब इसके पश्चात कुक्कुट आसन आपको करना है। तो कुक्कुट आसन में भी हाथों के ऊपर ही बैलेंस आता है। हाथ और कंधे इसे मजबूत करने के लिए ये कुक्कुट आसन किया जाता है। तो आइए देखते हैं कुक्कुट आसन, जो आपके हाथ पैर की स्नायु को पुष्ट करता है। धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश करना है। गोरज अब आपको जो दिखा रहा है वो है बिगिनर्स लेवल, यानी जब आप शुरुआत करते हो तो ऐसे होता है कि आप धीरे धीरे अपना बैलेंस खोते हो, कभी आगे कभी पीछे जाता है। मध्यम स्थिति में ओजस आपको दिखा रहा है कि मैं थक गया, अब नीचे बैठ गया, यानी आपका स्टैमिना जो है धीरे धीरे आपको डेवलप करना होता है। एक दिन में आप थर्ड लेवल पे जाओगे ऐसे नहीं होता। तो धीरे धीरे आपको हर आसन की कोशिश करनी है। अब हम करेंगे गर्भासन। जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है वैसे ही छोटे छोटे बनकर हमको दिखाएंगे गर्भासन की स्थिति। तो गर्भासन पद्मासन में किया जाता है जिससे जठराग्नि मजबूत होती है। जठराग्नि जो है वो मजबूत होती है, पाचन तंत्र में सुधार आता है और ये हमारे पेट के लिए सबसे अच्छा गर्भासन माना जाता है। तो धीरे धीरे इसमें होल्डिंग किया जाता है, जितना आपसे बन पाए उतना होल्ड करते हैं, फिर धीरे धीरे वापस भूमि की ओर आने की कोशिश करते हैं। आप थक जाओ तो वापस नीचे हाथ रख लो, फिर वापस खड़े हो जाए, जैसे ओजस ने अभी किया था कि अब थक गए तो हाथ को नीचे ले लिया, फिर वापस अपना बेस बना लिया। तो धीरे धीरे प्रत्यक्ष रूप में आप जब कोशिश करोगे तो आप इसे कर पाओगे। सिर्फ पहले आपको प्रैक्टिस धीरे धीरे शुरुआत करनी है। अब देखेंगे अकर्ण धनुष टंकारासन। तो आइए तीनों आप समांतर रूप में आ जाइए। अकर्ण धनुष टंकारासन, ये लेफ्ट और राइट साइड से आपको दोनों से करना है। पहले आप लेफ्ट साइड से कीजिए, फिर राइट साइड से करेंगे। अब इसमें एक एक स्टेप धीरे धीरे आपको देखनी है। हाथ पैर और जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए, उनकी ग्रंथियों को पुष्ट करने के लिए, कंपवात से आपको निवारण करने के लिए ये आसन है अकर्ण धनुष टंकार आसन। धनुष बाण जैसे चलाते हैं, उन्होंने अपनी तीर में कमान लगा ली है और अब बस छोड़ने ही वाले हैं।
इस स्थिति में ये आसन होता है अकर्ण धनुष्य टंकार आसन। दूसरी साइड से आप धीरे धीरे ये करके दिखाएंगे। ये आसन बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी आसन नहीं आसान, ये ध्यान रखिए। धीमे धीमे आपको कोशिश करनी है और ये एक एक आसन आप आराम से कर पाओगे। अब इसके पश्चात जो आसन करना है, धीरे धीरे आप छोड़ दो आसन, आ जाओ रिलैक्स। दंडासन की स्थिति में लंबे 1-2 सांस आराम से भरेंगे। जब आप ऐसे स्ट्रेचिंग वाले आसन करते हो तो आपके मांसपेशियों में ज्यादा खिंचाव आता है। तो जब जब आपको थकान महसूस हो तो आपको धीरे धीरे 1-2 लंबे सांस लेकर विश्राम लेना होता है और उसके पश्चात आपको नेक्स्ट आसन करने होते हैं। अब हम जो आसन करने वाले हैं उसमें मोर के भांति आपको मयूरासन करना है। तो मयूरासन की स्थिति आप लोग ले लीजिए, थोड़ा सा उधर जाइए, पाँव लगेंगे, ठीक, और पीछे जाओ। मयूरासन, जिसमें मोर की तरह आपके जो मोर के पंख पीछे फूलते हैं, वैसे ये पांव अपने ऊपर उठाते हैं और अपने शरीर का भार अपनी कोहनी के ऊपर पेट को रखकर हाथों की हथेलियों पर अपना बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है। इसे कहा जाता है मयूरासन। मोर की तरह आपको इस आसन में धीरे 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 धीरे, ये बिगिनर्स लेवल है, ये मिडिल लेवल है और उसमें वो है जो थर्ड लेवल पे है। तो आपको धीरे धीरे ऐसे ही कोशिश करते रहनी है। आ जाइए नीचे। ये यकृत के लिए, गुर्दा के लिए, आमाशय के लिए बहुत ही लाभदायी आसन है। इससे आपके मुख पर कांति आती है, तेज आता है और डायबिटीज के पेशेंट के लिए भी अच्छा है। लेकिन उम्र के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से आपको इसमें कोशिश करनी होती है। अब मयूर हो गया। अब इसको थोड़ा सा, जितने आपसे पाँव पर बैलेंस बनाना दिक्कत वाला होता है, तो अब दूसरा देखते हैं मयूरी आसन, जिसमें पाँव पद्मासन में फोल्ड कर कर उसी स्थिति में थोड़ा बीच में जाओ बेटा, आगे गिरो, पीछे अब इसमें भी ये वापस उसी स्थिति में बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। पाँव लंबे नहीं है, पद्मासन में करेंगे। तो आइए, मयूरी आसन इसे कहते हैं, जो जठराग्नि को प्रदीप्त करेगा, मधुमेह में लाभ देगा, मुख पे कांति लाएगा। धीरे धीरे, ये बिगिनिंग में जैसे थोड़ा सा थकान जल्दी आ जाती है, रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स, आराम से करो, बहुत अच्छे। वापस अपनी पूर्व स्थिति में आते हैं। अब फिर से 1-2 लंबे गहरे सांस ले लीजिए, क्योंकि जब आप पेट पर दबाव लाते हो तो स्ट्रेचिंग होता है और उससे आपकी हार्ट बीट थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसलिए हार्ट पेशेंट ऐसे कोई भी आसन ना करे, ठीक है। धीरे धीरे रिलैक्स, 1-2 लंबे सांस लीजिए। इसके पश्चात हमें चक्रासन करना है। तो आराम से रिलैक्स होइए, शवासन की स्थिति में आ जाइए। शवासन में 1-2 लंबे गहरे सांस आपको भरने हैं। आपका मुंह इधर से, ठीक, थोड़ा सा गोरज, थोड़ा साइड में होगा। शवासन की स्थिति ले लीजिए। पैरों में 1 से 1 फीट का डिस्टेंस, थोड़ा सा, पैर के पंजे बाहर, एड़िया अंदर, हाथों की हथेलियां खुली, लंबे 1-2 गहरे सांस विश्राम के लिए हमें लेना है। आराम से लंबे लंबे सांस थोड़े थोड़े भरिए और धीरे धीरे सांसों को छोड़ना है। 1-2 बार ये क्रिया कर लीजिए। इसे शवासन कहा जाता है। शवासन आपके शारीरिक थकान को दूर करता है। दिन भर में जो आपने भागदौड़ की है, उस भागदौड़ से आराम देने के लिए शवासन किया जाता है। अनिद्रा की जो समस्या है, उसमें अगर आप 5 से 2 मिनट से 10 मिनट तक शवासन लो, इसमें हर एक अंग को शिथिल किया जाता है। अब हमारे पास समय मर्यादित है, इसलिए हम इसे 10 मिनट का शवासन नहीं दिखा सकते, पर हम पाँव की उंगलियों से शीश के बाल तक हर एक अंग को ऑटो सजेशन देकर रिलैक्स करते हैं, और जिससे शरीर हल्का होता है और तंदुरुस्त भी रहता है। अब हम लोग करेंगे धीरे धीरे चक्रासन। तो चक्रासन में आपके पैर को मोड़ लिया, हाथों के बेस पर और पैरों के पंजे के बेस पर आपको कमर का पोर्शन उठाकर, जितना आप शरीर ऊपर उठा सकते हो बीच वाला, उतना आपको उठाने की कोशिश करनी है।
अब वो बिगिनर्स है, ये मिडल है और ये सुपर है। तो इसमें आपको ये देखना है कि शुरुआत जब थक जाओ तो वापस नीचे आओ, फिर वापस शुरू करेंगे। तो धीरे धीरे आपको ये आसन एक एक स्थिति में लेना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वापस एक बार करके दिखाएंगे ओजस, धीरे धीरे वापस आएंगे। तो जैसे जैसे अपनी कैपेसिटी है, क्षमता है, उसके हिसाब से होल्डिंग करते हैं। ये कमर के लिए रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, कुबड़ापन दूर करता है, शरीर में स्फूर्ति भरता है, तेज लाता है। कटी पीड़ा को, श्वास रोगों को, सिर दर्द में ये चक्रासन आपको अच्छे से लाभ देता है। आप शवासन कीजिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में भी ये लाभदायी आसन है, पर एक बार फिर से दोहरा दूं, अपनी हर एक की क्षमता अलग अलग है, इसलिए करते समय सावधानी पूर्वक और अपनी क्षमता को देखकर ही आपको होल्ड करना है। पहली स्टेज में पूरा ऊपर नहीं आ सकते, धीरे धीरे आपको हाथों पर बेस बनाकर ऊपर आना संभव हो सकता है। अब इसके पश्चात हमें देखना है स्कंद पादासन, जो हार्दिक और ओजस आपको हार्दिक और गोरज आपको करके दिखाएंगे स्कंद पादासन। तो आइए देखते हैं स्कंद पादासन। स्कंद यानी कंधा और पाद यानी पांव। पांव को कंधे के ऊपर ले जाकर पीछे की ओर टिकाना है, ऐसे कहा जाता है स्कंद पद्मासन। लेफ्ट पांव से पहले कर लेते हैं। ये हाथ, पांव और ग्रीवा की स्नायु को मजबूत करता है, शक्ति प्रदान करता है। होल्ड होल्ड, जितना जिससे बन पाए वो होल्ड कीजिए। धीरे धीरे वापस धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आते हैं। धीरे रिलैक्स, आराम से। अब दूसरे पांव से करेंगे। स्माइल। आसन करते समय शरीर में तनाव आता है तो चेहरे पे स्माइल थोड़ी सी दुर्लभ हो जाती है, याद दिला दी तो आ जाती है। तो आइए वापस पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। अब इसके पश्चात करते हैं एक पाद ग्रीवासन, ठीक है। तो एक पाद ग्रीवासन में आपको धीरे धीरे आना है, जो वक्षस्थल को, कंधों को आपके मजबूत करेगा। एक पाद ग्रीवासन धीरे धीरे आपको पहले लेफ्ट से करना है, उसमें होल्डिंग करना है। धीरे वापस धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आते हैं। पाँव को रिलैक्स करना है। अब दूसरे पाँव से धीरे धीरे करो, एकदम धीरे। ये वक्षस्थल को मजबूत बनाएगा, कंधों को मजबूत बनाएगा और ग्रीवा को भी मजबूत बनाने वाला है एक पाद ग्रीवासन। पैरों के हर अवयव को लचीला करने के लिए ये आसन किया जाता है। टांग की मांसपेशियों को मजबूत करता है ये आसन, एक पाद ग्रीवासन। लंबे 1-2 सांस गहरे भर लीजिए। आराम से थोड़ा सा दंडासन में 1-2 सांस लंबे लीजिए और धीरे धीरे सांसों को छोड़िए। रिलैक्स हो जाइए, एकदम रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब इसके पश्चात आपको करना है द्विपाद ग्रीवासन। पहले इन्होंने एक पाद को, एक पांव को अपने कंधे पर रखा था, अब ये आपको दिखाएगा दोनों पैरों को अपने कंधों पर रखकर उसमें होल्डिंग करना है। ये इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत ही क्षमता आपको लगती है और कॉन्सेंट्रेट भी होना पड़ता है और शरीर लचीला भी होना है। जितना आपका शरीर लचीला होगा उतने आप कठिन आसन आराम से कर पाते हो। इसके पश्चात हम लोग आएंगे नेक्स्ट आसन में, जिसे कहा जाता है तकिया आसन। तो आराम से तकिया आसन, जैसे विष्णु भगवान सोने की पोज दिखाते हैं, वैसे ये अपने ही आसन पे अपना ही तकिया बना के सोने वाले हैं। तो इन्होंने अपने पांव से हाथों को बेस देकर तकिया बना लिया और विष्णु जी की तरह आराम फरमा रहे हैं। अब दिखने में आसान है, जब करते हो तो पता चलता है कि क्या दिक्कत होती है। तो धीरे धीरे तकियासन, इसे उपधासन भी कहा जाता है।
तो ये हाथ पैर गर्दन को मजबूत करता है। एक बात ध्यान रखना कि एक साइड से अगर आसन होता है, लेफ्ट साइड से, कुछ आसन है कि दोनों साइड में आपको बैलेंस बनाना जरूरी होता है, इसलिए लेफ्ट एंड राइट से हम लोग इसे दिखाते हैं। रिलैक्स होना है थोड़ा सा। अब इसके पश्चात करेंगे सुप्त गर्भासन। सुप्त गर्भासन, हाथ पैर कमर पेट में उपयुक्त, गर्भावस्था में जैसे माँ के पेट में एक शिशु होता है उस तरह से ये बच्चा फिर से अपनी माँ के पेट में जाने के लिए तैयार छोटा सा बन गया है। यानी इसमें आप देखेंगे कि इसके पाँव दोनों ग्रीवा के ऊपर, द्विपाद ग्रीवासन में फिर इसने अपना गर्भासन बना लिया है। तो धीरे धीरे वापस फिर से एक बार आप इस साइड से दिखा दीजिए। ओके, धीरे आराम से। अच्छा, ये तो पड़ेगा। वापस इस आसन को छोड़कर एक बार फिर से इधर से दिखा आराम से। आपको तीन साइड से इसने आसन दिखाया है कि आपको तीनों पोस्चर समझ में आ जाए, साइड से, आगे से, पीछे से। पैरों को पीछे फोल्ड करना पड़ता है और उसके ऊपर अपना तकिया बनाए तो गर्दन को रख लेते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब इसके पश्चात देखते हैं, रिलैक्स होना है। पक्षासन के लिए तैयार हो जाते हैं। जगह पर खड़े होकर पक्षासन किया जाता है। तो पक्षासन में पहले वो सावधान स्थिति में खड़े होते हैं और फिर एक पंछी के भांति अपने शरीर को मोड़ने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे दोनों पांव से। पहले लेफ्ट साइड से करेंगे। यह आसन शरीर को हल्का एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाला है। जंघा की स्नायु को विकसित करता है। कब्ज मस्तिष्क के विकारों में इसे लाभदायी माना जाता है। इसे कहा जाता है पक्षासन। दूसरे पांव से धीरे धीरे। बहुत अच्छी। अब हम अपने इस शिविर के नहीं, इस कक्षा के अंतिम दौर में आ रहे हैं। अब हम लोग करने वाले हैं कुछ नमस्कार के अलग अलग प्रकार। तो आइए करते हैं पहले शुरुआत। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। आज के लिए हम यही विराम देते हैं। कल मिलेंगे फिर सुबह 7:30 बजे।